Hello dear students, welcome back. We are studying electronic devices and circuits for GATE as well as ESE. Students, in this course already we have covered 5 lectures. So अगर कोई स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहा है, दैट मीन्स कि लेक्चर नंबर 6 डायरेक्टली देख रहा है, तो वो मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 एक सीक्वेंस में देख लीजिए, ताकि ये लेक्चर समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि स्टूडेंट ये लेक्चर से हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो भी हमने पढ़ चुके हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आइंस्टाइन रिलेशनशिप। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हाट इज आइंस्टाइन रिलेशनशिप? So it is dn upon mu n equal to dp upon mu p equal to vt. Now what is dn? Diffusion constant for electron or electron diffusion constant. dp hole diffusion constant. Mu n mobility of electron. Mu p mobility of hole. And what is Vt? Vt is nothing but your thermal voltage, and this Vt is given by Kt, and already we have seen what is Kt and what is K. So it is K bar T by Q. Okay, and if you put the value of K or K bar and Q, then you will get T upon 11,600, where T is in temperature and it is equal to 26, near about 26 millivolt at room temperature, that is 300 Kelvin. Room temperature means 27 degree Celsius or we can say 300 Kelvin. और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है Vt की वैल्यू, तो आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है 26 मिलीवोल्ट। ओके, सो डिफरेंट पैरामीटर यहाँ पे लिखते हैं हम। तो Dn क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट और डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज dp? व्हाट इज dp? होल diffusion constant. Okay, and mu n is mobility of electron. Mu p mobility of hole. Okay, next is very important, that is Vt. So what is Vt? As I told, it is what? Vt is nothing but thermal voltage. Vt is thermal voltage, and this Vt is given by Vt is thermal voltage, and what is T? T is temperature in Kelvin. Okay, what is K bar? That is Boltzmann constant in K bar is joule per Kelvin, and that is equal to 1.38 into, this is equal to 1.38 into 10 power minus 23. Already we have seen joule per Kelvin. Okay, what is K? What is K? Again K is Boltzmann constant in electron volt per Kelvin, and already we have seen it is 8.625 into 10 power minus 5 electron volt per Kelvin. Okay students, so this thing you have to remember, काफी क्वेश्चंस इससे आते हैं। Vt
as I told, it is thermal voltage and it is kT equal to k bar T upon Q. So Vt, what is the value of k bar? So k bar is 1.38 into 10 power minus 23. What is Q? Charge of 1 electron, 1.6 10 power minus 19 into T. So if you calculate this, then Vt you will get T upon 11,600, okay, volt. This is very important formula, and this Einstein relationship also very important. This is also very important, okay. This is also very important, students, okay. So this is all about Einstein's relationship. So we can say dN by mu n equal to Vt equal to dP by mu p, or we can say mu n by dN, mu p by dP equal to 1 upon Vt, correct. So this thing you can remember, okay. अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो भी थियोरी हमने पढ़ लिया है उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे. तो थियोरी और फार्मूला वगैरह एक बार पढ़ने के बाद आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ओके. तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स is 5 meter per second and the field gradient of 100 volt per meter, find its mobility. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स ईडीसी में क्या होगा, जनरली थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और दूसरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे. और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई एक फॉर्मूला के अंदर 4 to 5 पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसमें से कोई एक अननोन होगा और बाकी के पैरामीटर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मेंशन कर देंगे. तो क्या करोगे आप, गिवन डेटा एक साइड पे लिखिए. अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो मैं गिवन डेटा साइड पे लिख रहा हूँ. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल दैट इज Vd इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड एंड द फील्ड ग्रेडियंट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया आपको E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, so that is 100 volt per meter. This is given and find its mobility. Okay, तो क्या फाइंड करना है, आस्क डेटा यहाँ पे लिखिए आप, होल की मोबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है. अब फिर सोचिए कि ये गिवन डेटा एंड आस्क डेटा के बीच कोई रिलेशन बन रहा है, कोई फॉर्मूला यूजफुल है, वो आप थोड़ा सोचिए. तो आपको आइडिया आएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is proportional to applied electric field and proportionality constant is nothing but mu, and here mobility of holes mu p E. So here easily we can find mobility is Vd upon E. सिंपल से क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, हार्ड लेवल पे भी मैं जाऊंगा, ओके, डोंट वरी. इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. सो Vd कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड. यूनिट चेक करना है, यूनिट सेम रहना चाहिए. यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे मीटर ले लीजिए, और ये 100, ठीक है. और मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, और वी कैन से सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड. तो ये कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड. अब अगर क्वेश्चन ऑप्शंस में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 को 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा. क्लियर. तो कितना आंसर आ जाएगा फिर यहाँ पे, यू कैन कैलकुलेट, दैट इज 500. यहाँ से भी कर सकते हो. सो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. तो यूनिट मेन चेक करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू चेक यूनिट. इफ इट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन देन द मोबिलिटी इज डैश, सपोज मोबिलिटी इज डैश और यूनिट दिया है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, देन यू हैव टू टाइप 0.05. बट सपोज यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, देन यू हैव टू टाइप 500. Remember this thing. This is very important part. Okay. So 500
इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो 500, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड तो 500, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड तो 0.05। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द कैरियर मोबिलिटी इन अ सेमीकंडक्टर इज 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड, फाइंड द डिफ्यूजन कांस्टेंट। ओके, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले मैंने बताया था कि गिवन डेटा आप साइड पे लिखिए। गिवन डेटा तो कैरियर मोबिलिटी दिया है आपको म्यू आपको दिया है 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड डिफ्यूजन कांस्टेंट डी दे आर आस्किंग। तो सोचिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। तो जस्ट अभी हमने देखा है आइंस्टाइन रिलेशनशिप। तो आइंस्टाइन रिलेशनशिप क्या था, डी रेशियो ऑफ डी बाय म्यू इक्वल टू वी टी, एंड वी टी इज व्हाट, थर्मल वोल्टेज। सो डिफ्यूजन कांस्टेंट डी क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, म्यू इंटू वी टी। ओके, नाउ व्हाट अबाउट वी टी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि थर्मल वोल्टेज क्या लेना है, तो बाय डिफॉल्ट आपको रूम टेम्परेचर पे जो वैल्यू है वो आपको कंसिडर करनी है। तो रूम टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, 26 मिलीवोल्ट। बट अगर क्वेश्चन के अंदर रूम टेम्परेचर पे वीटी की वैल्यू 25 मिलीवोल्ट दिया है तो वही यूज करिए। क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है वही यूज करिए। फिर उस टाइम पे आपको 26 मिलीवोल्ट नहीं लेना है। अगर 25 मिलीवोल्ट बोला है क्वेश्चन में अंदर बाय डिफॉल्ट, तो फिर आप 25 मिलीवोल्ट ही लीजिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसलिए हम वीटी 26 मिलीवोल्ट लेंगे। म्यू आपको दिया है 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, वीटी है 26 मिली, तो कितना हो जाएगा ये, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करोगे आप, वन 104 आएगा, और 0.4 है दैट इज 10.4 मिली। अब यूनिट क्या होगा, यूनिट चेक करना है आपको। व्हाट इज द यूनिट, यूनिट क्या होगा बताइए। वेरी सिंपल, यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से आप यूनिट फाइंड कर सकते हो। देखो डिफ्यूजन कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, सो डी इक्वल टू म्यू इंटू वी टी। अब म्यू का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, करेक्ट। एंड थर्मल वोल्टेज, वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट, ठीक है। तो वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ही आएगा, ठीक है। क्लियर, रिमेंबर दिस थिंग। सो म्यू क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, और वीटी क्या होगा, वोल्ट, तो वोल्ट वोल्ट कैंसिल, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मिली मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिली मतलब हम लिख देते हैं 10⁻³ ओके। सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁴ करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये कितना आंसर आएगा, 104 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज योर डिफ्यूजन क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ओके। 104 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ n type semiconductor has electron density of 6.25 into 10⁻18 atoms per centimeter cube at 300 Kelvin. If the intrinsic concentration of charge carrier in the sample is 2.5 into 10⁻13 per centimeter cube, find the whole concentration. Okay, आपको एक सैंपल दिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन दिया है और इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए गिवन डेटा लिखिए आप। तो ये क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया है, ये मीनिंग होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स हियर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
free electrons. So n is what? 6.25 10 power 18. Okay, and intrinsic concentration, that is Ni. So 2.5 into 10 power 13 per centimeter cube, here also per atoms per centimeter cube. ओके, अब देखो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि एक कौन से टाइप का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, या तो फिर सेमीकंडक्टर होगा जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम के लिए 2.5 इंटू 10 पावर 13 है। अगर मैं सिलिकॉन के लिए बात करूँ तो Ni क्या हो जाएगा, वो बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये है सिलिकॉन के लिए Ni, और जर्मेनियम के लिए इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 2.5 इंटू 10 पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज गिवन। तो बताइए अब क्या फाइंड करना है आपको, होल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, दैट इज P। तो ऑफकोर्स आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या यूज करना है, मास एक्शन लो वी विल यूज, दैट इज N इंटू P इक्वल टू Ni स्क्वायर एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है ये सब 300 केल्विन पे वैल्यू है। मैंने बताया था कि इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। सो N दिया है आपको, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, Ni स्क्वायर अपॉन N, दैट इज Ni स्क्वायर। सो 2.5 इंटू 10 पावर 13 होल स्क्वायर अपॉन 6.25 इंटू 10 पावर 18। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, 2.5 स्क्वायर दैट इज 6.25 इंटू 10 पावर ये हो जाएगा 26 अपॉन 6.25 इंटू 10 पावर 18। सो आंसर क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 6.25 कैंसल आउट एंड 26 माइनस 18, सो इट इज 10 पावर 8 atoms per centimeter cube. Okay students, this is your final answer. Okay, this is your final answer. So I hope ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। Okay, let us take one more question. Question number 4. A flat aluminum strip with a resistivity of resistivity is given. Resistivity of 3.44 into 10 power minus 8 ohm into meter, and length is given 5 millimeter, and the cross sectional area, okay, cross sectional area is given, that is 2 into 10 power minus 4 millimeter square, is subjected to a current flow of 50 milliampere. इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 50 milliampere करंट फ्लो हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट। तो चलिए वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करते हैं। ओके, पहले गिवन डेटा लिख दीजिए आप। रेजिस्टिविटी रो इज, याद रखिए यूनिट सेम रखना है आपको, सभी पैरामीटर्स के यूनिट सेम रखिए। अगर मीटर में ले रहे हो तो मीटर में ही रखिए सब कुछ, तो ओम इंटू मीटर। चलिए मीटर में लेते हैं हम। लेंथ L दैट इज 5 मिलीमीटर, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर माइनस 4 है और मिलीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस मिलीमीटर मीन्स 10 पावर माइनस 3, और उसका स्क्वायर करोगे आप तो 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ओके, यूनिट सेम रखिए, रिमेंबर गाइस, अगर यूनिट डिफरेंट है तो फिर डिफरेंट आंसर आ सकता है। करेक्ट। सो रो गिवन, एल गिवन, ए गिवन, एंड सबको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए अब क्या दिया है, दूसरा करंट दिया है आई, कितना है 50 मिली एम्पियर। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, वी फाइंड करना है। तो ओम्स लॉ क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि V इक्वल टू वॉट, आई आर, एंड आर इज रो एल अपॉन ए इंटू करंट आई। सो V, चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। तो रो क्या है 3.0
44 इंटू 10⁻⁻8। एल कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10 पावर, सी दिस इज -4 and -6, it is -10 into current I 50 मिली एम्पियर, दैट इज -3। तो अब ये जो मिलेगा आंसर वो वोल्ट में आएगा, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो वोल्ट में आएगा। चलिए हम चेक करते हैं तो क्या आंसर आएगा। लेट मी कैलकुलेट दिस। अगर हम कैलकुलेट करें तो 3.44, आप सबके पास भी कैलकुलेटर होगा, 5 इंटू 50। ईडीसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप यूनिट सेम रखें, दूसरा कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आ रहा है 3.4, ये सब मल्टीप्लाई किया मैंने डिवाइड बाई 2, सो 430 आ रहा है। अब देखते हैं कि 10 पावर कितना आएगा। सो -8 -3 -3, सो -6 -14 एंड दिस इज -10, सो कितना आ जाएगा -4 वोल्ट आएगा। सो इसको क्या लिख सकते हैं, इधर हम 0.43 मिली वोल्ट ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट, 0.43 मिली वोल्ट, ओके। और लेट मी चेक वंस 3.44 430, it is correct, and 10 power -3, then okay, so here it is yes -14, ये ऊपर जाएगा तो -4 रहेगा, ओके। सो वी कैन से 0.43 वोल्ट आएगा ये, करेक्ट। 0.33 सॉरी 0.0, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते, मिली वोल्ट में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। वेट, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मिली वोल्ट, सो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपको 43 मिली वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर मिली वोल्ट में पूछा है तो मिली वोल्ट में ही आंसर निकालिए, अगर वोल्ट में पूछा है तो वोल्ट में आंसर निकालिए, अगर ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो ईडीसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहेगी, जैसे मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर कितने पैरामीटर है, 1 2 3 4 5 अननोन से, इसमें से कोई भी एक क्या हो जाएगा कि अननोन होगा और बाकी के नोन रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे अननोन क्या था, वी, तो रो एल ए एन आई दिया था, है ना। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको रो पूछेंगे तो बाकी के पैरामीटर्स दे देंगे, करंट पूछेंगे तो बाकी के पैरामीटर्स इन शॉर्ट दिए होंगे, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा, ओके स्टूडेंट्स। सो ये लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, लेक्चर नंबर 6 में। अब लेक्चर नंबर 7 में भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।